कर्नाटक का सियासी माहौल लगातार चौथे दिन भी सरगर्म बना हुआ है। इत्तेहादी खेमे में 1 दर्जन एमएलए के इस्तीफे के बाद कुमारस्वामी हुकूमत मुश्किल में आ गई है। हालांकि सीएम समेत कांग्रेस का कहना है कि उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। मौजूदा हालात के मद्देनजर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को बेंगलुरु भेजा है। तो उधर कर्नाटक के सीएलपी की मीटिंग हुई है, जिसमें साबिक वजीर रामलिंगा को वजीर बनाने का मुद्दा उठा। उनके हामी एमएलए ने दावा किया है कि अगर ऐसा हुआ तो कई एमएलए वापस आ सकते हैं। इस दौरान साबिक सीएम सिद्धरमैया मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही इस हालात के लिए वो बीजेपी की आला क़यादत और पीएम मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता रहे हैं। मौजूदा माहौल के डैमेज कंट्रोल की गरज से कांग्रेस ने अपने सभी वज़रा का इस्तीफा ले लिया है और साथ ही सियासी खेमे में इसे बागी एमएलए की नाराजगी दूर करने का एक दांव के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक में कुल 224 असेंबली की सीटें हैं और अक्सरियत के लिए 113 अरकान की जरूरत पड़ती है। फिलहाल बीजेपी के पास 105 एमएलए हैं, जबकि कांग्रेस के पास 77 और जेडीएस के पास 37। इसके अलावा हुकूमत को हिमायत दे रही बीएसपी का 1 एमएलए शामिल है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हुकूमत के पास कुल 115 एमएलए की हिमायत थी, लेकिन जिस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा जो एमएलए वो बागी हुए हैं, उनकी खबर आई है इस्तीफे की, उसके बाद से सियासी बहरान लगातार बढ़ता जा रहा है और आज चौथा दिन है, जिसके बाद लगातार सियासी इस ओहापोह के बीच ये समझ नहीं आ पा रहा है कि कब किस वक्त ये सरकार गिर जाए और या फिर कब तक बनी रहेगी। Actually, Ramalinga Reddy's daughter came to the meeting and she already told her. And Ramalinga Reddy also told me he will not leave Congress party, that he will not join BJP also. Sir, many of the leaders and many of the MLAs because they've resigned. You can if you have an access to the speaker's office, you can access the petition of us. No, but you can ask. Sir, many of the MLAs want that Ramalinga should be given the home ministry and the in charge of the Bangalore. No, he is one of the senior most leader of the Congress party. Definitely we will honor him very much. That is the general sentiment of the people. Sir, you had meeting with him, will he come Again, back? one more leader. While the meeting, Sir, while the will he come CLP back? was going on, So will he come back? Ramalinga Reddy, will he come back to you? Will he come back to you? I think he is a strongest loyal congressman. He will be here as a congressman. That is what my confidence. How about those MLAs, sir? That is what my confidence. Many of the MLAs says the source says that they wants to come back, but they are not coming back. Let us see. We only the days are here. Only in the assembly only you can finally you can decide anything. So what is Rahul Gandhi? That is a way to decide the future of the government. Let us see. We have a hope. BJP, despite the fact they have failed to prove the majority on the floor of the House, when the opportunity was given to them, they are trying to destabilize this government continuously, constantly. 5 times they have attempted to destabilize this government. This is the 6th attempt. They are trying to destabilize this government. In this BJP's attempt, not only Karnataka BJP is involved, the national level BJP, Mr. Amit Shah, Mr. Narendra Modi directly involved in this. This is against democracy. This is against parliamentary system of democracy and the system of government. This is against the mandate of the people. They are offering money, they are offering positions, they are offering ministerships. That's why I questioned number of times, where did this money come from? ये सम्मिश्र सरकार का झगड़ में हमारा बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। ये आपस का झगड़ है। कांग्रेस का आपस में बहुत झगड़ चल रहे हैं। सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, परमेश्वर, खरगे सभी के साथ वो झगड़ चल रहा है, इसलिए ये सब पूरा हो रहा है। इसलिए बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बहुत पुराने नेता रामलिंगा रेड्डी जैसा नेता भी बहुत नाराज है। इसीलिए हमारा कैंप में कोई नहीं है, हम इसके साथ भी नहीं है, क्योंकि वो सम्मिश्र सरकार में जेडीएस कांग्रेस के कुमारस्वामी के ऊपर सभी बहुत नाराज है। सिद्धरामैया के ऊपर भी बहुत लोग नाराज है। इसका बहुमत अभी नहीं है, इसके साथ बहुमत नहीं है, इसलिए इस्तीफा जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना, क्योंकि अभी पूरा स्टैग्नेंट है। कर्नाटक का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्टैग्नेंट है, इसीलिए कुछ काम नहीं चल रहा है। ऑफिशियल्स भी पूरा नाराज है, इसीलिए जल्दी से जल्दी वो इस्तीफा देना।
कांग्रेस और जेडीएस के नाराज अरकान के इस्तीफे के बाद लीडर अपोजिशन का रहायशगाह सियासत का मरकज बन गया है। बीएस येदियुरप्पा के हामी और नाराज अरकान लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और इसी इशू को लेकर रियासती दफ्तर पर बीजेपी की मीटिंग भी हुई। तो उधर इस्तीफा देने वाले तमाम अरकान को मुंबई से गोवा भेजे जाने की भी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस मौजूदा हालात के लिए बीजेपी पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह सब इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत का मामला है। और इस मौके पर बीजेपी ने सीएम कुमारस्वामी को तुरंत इस्तीफे की मांग की है, जबकि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अपने मुद्दतकार पूरा करेगी। तो कर्नाटक में मौजूदा बहरान के बाद सभी की निगाहें रियासती स्पीकर रमेश कुमार पर मरकूज है। हालांकि उन्होंने गवर्नर को लिखे खत में 13 में से 8 अरकान असेंबली के इस्तीफे को गैर आईनी बताया है। बाकी 5 अरकान को उन्होंने अपने सामने पेश होने को कहा है, जिन पर फैसला उनकी बात सुनने के बाद ही करना सही रहेगा। गवर्नर को खत लिखकर उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे चुके किसी भी एमएलए से उनकी मुलाकात नहीं हुई है और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रमेश कुमार ने यकीन दिलाया है कि जो भी होगा आइन के मुताबिक ही किया जाएगा। तो अब नजर सिर्फ यह है कि आने वाले वक्त में कि क्या कुछ होने वाला है और आने वाले वक्त में क्या मुस्तकबिल होगा कर्नाटक में। Is not properly framed. If the government express their intentions to decide, then I have a set rules, procedure. Go by that, then the decision will happen. MLA's resignation should be accepted immediately. It is their opinion. I am not bound by it. So is there a time frame, sir, by which you are? So there has got to be response. So the resignation, certain things in the law are implied. They are invisible. Office of the Speaker should behave respectfully and responsibly. Time frame is not mentioned here, presuming that every person who occupies the office of Speaker will behave respectfully and in a dignified way. And I am going to do that. So the Congress legal cell has written to you saying that you should not accept the resignation. Not seen. I left office on Saturday. Yeah. I have come only today. Yeah. Whichever cell has written, I'll have to go through that now. Sir, but if the Congress party... You have put too many. Should I not be generous? No, please, sir. Please, Sir, please. you said the definition of voluntary is something we looked at. What exactly do you I mean by want you to kindly go through the dictionary meaning for the word voluntary and genuine. I also want to take the dictionary and go through that now. Then the clause says, if the speaker is convinced that the resignations are voluntary and genuine, he can accept, not otherwise. Therefore, I don't know, I am not a well-read man. और कर्नाटक की सियासी अपडेट देने के लिए इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा। जयपाल, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक के इस नाटक के अंदर, क्योंकि लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं कि उठापटक जरूर चल रही है लेकिन अभी तक कोई फैसला, कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज बहुत उम्मीद थी कि जब स्पीकर विधानसभा में आएंगे तो जरूर इस बात की आगे बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि स्पीकर ने 13 जो इस्तीफे हैं उनमें से 8 को ये कह करके रिजेक्ट कर दिया कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, यानी जो उसका एक तरीका होता है उस तरीके से वो पत्र नहीं लिखे गए हैं। और सिर्फ 5 इस्तीफे ऐसे हैं जिनको कि उन्होंने वैलिड पाया। तो उन्होंने 12 तारीख और 15 तारीख 2 दिनों के अंदर में 12 तारीख को 3 विधायक और 15 तारीख को 2 विधायक को मिलने का इंटीमेशन दे दिया है कि वो उस दिन उनके सामने में आए, जिससे कि जिस दौरान वो उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इस्तीफा किसी प्रकार के जवाब में दिया गया है या वो अपनी दिल से इस्तीफे को दे रहे हैं या कहीं इसमें कोई मनी पावर तो इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह से बातचीत करने के बाद वो निर्णय लेंगे। लगभग ऐसी ही स्थिति है। उन्होंने बाकी विधायकों को यही बोला कि आप 8 लोग अगर दोबारा इस्तीफा देना चाहते हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर के आप मेरे चैम्बर में आए, यहाँ मैं मौजूद हूँ आपसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बात जो है 15 तारीख तक चली जाती है। दूसरी ओर जो है कांग्रेस की आज विधायक दलों की बैठक हुई थी जिसके अंदर में बाकी विधायक तो नहीं पहुंचे, इसके अलावा 6 और विधायक वहां पर अनुपस्थित रहे, वो नहीं आए। हालांकि बाद में कांग्रेस ने बताया कि उन्होंने उसके वाजिब कारण दिए थे कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही के साथ सिगरबैया में बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 12 तारीख से असेंबली की शुरुआत हो रही है। हमने मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए हैं लेकिन वो इस्तीफे अभी तक राज्यपाल को नहीं दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री भी अपने पद पे हैं, बने हुए हैं, तो इस तरह से कैबिनेट भी है, मुख्यमंत्री भी है और सेशन चलेगा। तो 12 तारीख से ये सेशन चलेगा। जरूर अब लोगों की निगाहें जो हैं वो 12 तारीख, बिल्कुल 12 तारीख पर सभी की निगाहें लगी हुई है। लेकिन जयपाल, एक और छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है अपने अपने जितने भी ये एमएलए हैं, कभी मुंबई कभी गोवा की बात निकलकर सामने आ रही है, अभी फिलहाल क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है? जी देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार इस बात की कोशिश है कि वो अपनी बातों को बागी विधायकों तक पहुंचा सके। यही कारण है कि उन्होंने तमाम मंत्रियों को पीछे लेकर के स्थिति लगभग वैसी कर दी है जो आज से 13 महीने पहले सरकार बनी थी। यानी मुख्यमंत्री के पद से कुमार स्वामी काबिल थे और पूरा कैबिनेट खाली था। लगभग वही स्थिति उन्होंने क्रिएट की है और कहा है कि आप वापस लौटिए, आप लोगों की जो भी नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे और जो मंत्री पद चाहते हैं उनको मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन अब गेंद एक तरह से बागी विधायकों के पाले में है। अब उनको निर्णय लेना है कि वो इस पर क्या करते हैं। हालांकि अभी तक कोई संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है कि कोई विधायक आने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर कार्रवाई आगे बढ़ गई है और अब जिस तरह से स्पीकर ने उनको बुलाया है और 12 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, जाहिर है कि कांग्रेस, यानी कि अब सभी को जो निगाहें हैं वो 12 तारीख पर आकर टिक गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका।